Hello students, welcome to the class. Students, in the previous class we had seen SQL group functions. हमने पिछले क्लास में SQL group functions पढ़ा था, जो कि एक बहुत ही important topic है. Group functions में हमने देखा था basically SQL functions it is divided into two types, that is single row function and multiple row functions. Single row को scalar कहते हैं और multiple row functions को ही group functions या aggregate functions कहते हैं. Among group functions, we studied 5 group functions as per the syllabus. They were count, max, min, sum and avg. तो ये 5 group functions बहुत ही important है. Students, please आप इस group functions को अच्छी तरीके से practice करिए. In today's class, we are going to learn group by clause. Group by पढ़ेंगे, then group by में condition कैसे apply करते हैं, then we'll see some topics. First, I will start with group by clause. अब तक हमने जितने भी कमांड्स देखे थे दैट वेर अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल रोज में अप्लाई होता था. सो व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज, क्यों हम एसक्यूएल में ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करते हैं. सी ऑन द स्क्रीन ग्रुपिंग रिजल्ट दैट इज ग्रुप बाय. It combines all those records that have identical value in a particular field or a group of fields. Students, that means group by clause is used to combine all the records that have identical value. यानी उस कॉलम पे हम group by अप्लाई करते हैं जिसमें identical values होता है. Identical value means same values multiple times होता है. वैसे field, वैसे columns में हम group by अप्लाई कर सकते हैं. It is used to divide the result in groups. That means group by is used to divide the result. जब आपको स्क्रीन में रिजल्ट मिलता है at that time you can divide the result in groups. आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. Grouping can be done by a column name or with aggregate function, that is group functions, in which case the aggregate produces a value for each group. That means ये बहुत important है. Group by में आप aggregate functions, that is group functions जो हमने previous class में पढ़ा था वो आप अप्लाई कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको क्या होगा, aggregate function जब अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही ग्रुप में मिलता है. See the syntax. Select field list. Field list का मतलब होता है what are the columns you want to see. You have to give by giving comma. Then from table name, group by column name. Here the keyword is group by. Group और by के बीच में space होगा. So whatever the words that is written in bold letter, red font color, that is keywords. Select from group by. तो group by अप्लाई करने के लिए आपको select part तो ऑलरेडी आपको पता है, आप कैसे select कमांड लिखते हैं. बस आपको क्या ऐड करना होता है, the keyword group by. Then after group by you have to give column name. किस कॉलम को बेस करके आपको group by अप्लाई करना है, किस कॉलम पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, that you have to give. Here you have to remember we are not going to use where clause. group by में देखिए where clause नहीं लिखा हुआ है, just आपको group by column name लिखना है. Now we are going to see one example. See students, in the previous class also I used this table employee. मैंने employee table को previous class में SQL commands group functions के लिए use किया था. The same table I am going to use today also. See the table, how many columns? EMP number, EMP name, job, sal and department number. How many records are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 records are there. That means now I am going to apply this group by clause in this particular table. What table? Employee table. For example, if I want to show, see the job column. Job में what are the values are there? Clerk, salesman it is repeated, manager, clerk, president. See how many records are repeated. Clerk is repeated, clerk 2 times है, salesman it is 2 times and president और manager 1 time. That means मैंने बताया था group by उस field में हम अप्लाई करते हैं जिसमें identical values होता है. Identical value means the same value repeated. जो repeated होता है उस तरह के कॉलम में हम normally group by अप्लाई करते हैं. So I want to see job wise मुझे काउंट करके बताना है how many records are there या हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर. यानी आपको बताना है कितने एम्प्लॉयज़ है जिनका जॉब डेसिग्नेशन क्लर्क है, कितने एम्प्लॉयज़ है जिसका डेसिग्नेशन सेल्समैन है,
कितने एम्प्लॉय है जिसका डेसिग्नेशन जॉब क्लर्क है, या कितने एम्प्लॉय है जिसका जॉब प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट टू शो जॉब वाइज हाउ मेनी एम्प्लॉयज और हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर। आपको ये एसक्यूएल क्वेरी में लिखकर बताना है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस ग्रुप बाय क्लॉज। जस्ट आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल, सेलेक्ट व्हाट आर द कॉलम्स आई वॉन्ट टू सी। आई वॉन्ट टू सी द जॉब, आपको जॉब शो करना है। देन आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब वाइज आप कितने एम्प्लॉयज है, यू वांट टू काउंट द हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर अकॉर्डिंग टू द जॉब। तो यानी यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना होगा, काउंट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड काउंट फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू यूज द ग्रुप फंक्शन काउंट। अब आपको ब्रैकेट में कॉलम नेम लिखना होगा या आप एस्ट्रिक यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको पूरे रिकॉर्ड्स में से काउंट करना है हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर। तो आप यहाँ पर एस्ट्रिक दे सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब इट विल सर्च ऑल द रिकॉर्ड्स, कितने जॉब के अकॉर्डिंगली कितने रिकॉर्ड्स हैं। देन यू हैव टू राइट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम इज एम्प्लॉय। देन आपको ग्रुप बाय अप्लाई करना है, राइट ग्रुप बाय, किस कॉलम के अकॉर्डिंगली आप ग्रुप करना चाहते हैं। यू वांट टू अप्लाई ग्रुप बाय क्लॉज ऑन द कॉलम जॉब, जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन यू हैव टू राइट द कॉलम नेम जॉब एज पर द सिंटैक्स। जैसा मैंने बताया था, सेलेक्ट फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, आप कौन कौन सा कॉलम को आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं। तो कौन कौन सा कॉलम मैंने यहाँ पे शो किया है, जॉब कॉलम, फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। देन जॉब के बाद आपको क्या करना है, यू वांट टू काउंट द रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर, सो आई हैव अप्लाइड काउंट फंक्शन। उसके बाद विद इन पैरेंथेसिस मैंने एस्ट्रिक लिखा है, दैट मीन्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स में से वो काउंट होगा। देन फ्रॉम टेबल नेम इज एम्प्लॉय, देन ग्रुप बाय इज द कीवर्ड, देन फील्ड, फील्ड नेम, फील्ड का मतलब होता है कॉलम नेम, किस पे आप ग्रुप बाय अप्लाई करना चाहते हैं। तो ग्रुप बाय मुझे किस पे अप्लाई करना है, जॉब कॉलम पे। देन यू हैव टू राइट सेमीकोलन। दिस इज द क्वेरी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। अब अगर आप ये क्वेरी लिखेंगे using group by, then what output you will get on the screen. Now I am writing the output, how you will get the output. First column job, then second आप क्या शो करवा रहे हैं, count asterisk। इसी तरह आपको जब प्रैक्टिकली आप करेंगे you will get the output like this। जॉब, सबसे पहला जॉब क्या है, क्लर्क। क्लर्क में इट विल काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, काउंट फंक्शन अप्लाई किया है। काउंट क्या करता है, इट विल सर्च द, इट विल काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर। इस पे आपको ध्यान देना है, काउंट फंक्शन डज नॉट इंक्लूड नल वैल्यू, नल को वो काउंट में नहीं लेता है। बट यहाँ पे टेबल में किसी भी फील्ड में नल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इट विल काउंट हाउ मेनी क्लर्क्स आर देयर, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, 1 and 2, so the output will be 2. This is the first job. Second one, salesman. Again you can see salesman, how many records are there, it will count and will give the output as 2. Next, manager. Manager, how many records are there, only 1, so it will show 1. Last one, president. President also only 1 record is there, so it will show 1. This is the output. In this way you will get the output on the screen. जब आप प्रैक्टिकली इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे आपको स्क्रीन में ऐसा ही आउटपुट मिलेगा व्हेन यू अप्लाई ग्रुप बाय क्लॉज। वंस अगेन आई एम टेलिंग, ग्रुप बाय जिस कॉलम पे अप्लाई करते हैं वहाँ पर देखिए आइडेंटिकल वैल्यूज़ को वो ग्रुप कर रहा है, आइडेंटिकल वैल्यूज को ग्रुप कर रहा है, और वो साथ ही साथ ग्रुप फंक्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है, काउंट फंक्शन। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द जॉब ग्रुपिंग इज डन एंड द काउंटिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स आर डन। क्लर्क में 2 रिकॉर्ड्स हैं, सेल्समैन में 2 रिकॉर्ड्स, मैनेजर में 1 एंड प्रेसिडेंट में 1। अगर टेबल में और भी रिकॉर्ड्स होते तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट भी होता। आई होप यू आर क्लियर, यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल सी वन मोर एग्जाम्पल। If I want to show, I want to count, also I want to apply group by not on the column job। अब मुझे जॉब पे अप्लाई नहीं करना है, मुझे अप्लाई करना है डिपार्टमेंट नंबर कॉलम पे। यू कैन सी ऑन द राइट साइड डिपार्टमेंट नंबर में भी आइडेंटिकल वैल्यूज है।
डिपार्टमेंट नंबर में आइडेंटिकल वैल्यूज है. व्हाट आर द आइडेंटिकल वैल्यूज? 20 2 टाइम्स है, देन 30 भी 2 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है. सो इस तरह के फील्ड में, इस तरह के कॉलम में हम ग्रुप बाई अप्लाई कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग द सेलेक्ट पार्ट. सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर. पिछले क्वेरी में जॉब था क्योंकि हमने जॉब के अकॉर्डिंगली ग्रुप बाई किया था. अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप बाई करेंगे. डिपार्टमेंट नंबर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नंबर आई वॉन्ट टू काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. कितने रिकॉर्ड्स है डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंगली आपको वो काउंट करके शो करना है. देन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नंबर वाइज आई वॉन्ट टू शो द सम ऑफ सैलरी. सम ऑफ सैलरी. सम इज ऑल्सो ए ग्रुप फंक्शन. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सम फंक्शन क्या करता है, जिस पर्टिकुलर कॉलम पे हम सम फंक्शन अप्लाई करते हैं इट विल ऐड ऑल द वैल्यूज. जितने भी वैल्यूज है उसको वो ऐड करता है एंड इट विल गिव रिजल्ट. तो यहाँ पर ग्रुप फंक्शन कौन सा अप्लाई हुआ है? सम. सम किस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग ऑन द कॉलम सैलरी. बट डायरेक्टली सैलरी कॉलम में जितने भी वैल्यूज है डायरेक्टली वो ऐड नहीं करेगा. इट विल ऐड अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप बाई अप्लाई हो रहा है. ग्रुप बाई हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं? डिपार्टमेंट नंबर पे. सी द डिफरेंस. प्रीवियस क्वेरी और इस क्वेरी में क्या डिफरेंस है? वहाँ पर केवल एक ही ग्रुप फंक्शन यूज हुआ था, दैट इज काउंट. यहाँ पर हमने सम फंक्शन भी यूज किया है. सो हाउ द आउटपुट विल डिफर. कैसे आउटपुट आपको मिलेगा? फर्स्ट व्हाट विल कम? डिपार्टमेंट नंबर. ये आपको मिलेगा डिपार्टमेंट नंबर. देन आपको काउंट भी करना है, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर एज पर द डिपार्टमेंट नंबर. देन यू हैव टू शो सम ऑफ सैलरी. डिपार्टमेंट नंबर वाइज आपको एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है उसको आपको ऐड करके शो करना है. सो द फर्स्ट डिपार्टमेंट नंबर इज 20. इट विल शो 20. देन 20 काउंट फंक्शन. What it will do? It will count how many records, how many employees have department number 20. कितने employees है जिसका department number 20 है. कितने रिकॉर्ड है? 1 2. पहला रिकॉर्ड है and fourth one. So count will be 2. Then sum of salary. Normally sum function क्या करता है? It will add all the values. But here यहाँ पर आपको सारे वैल्यूज को एट ए टाइम ऐड नहीं करना है. एज पर द डिपार्टमेंट नंबर, जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 20 है उन्हीं एम्प्लॉयज़ का सैलरी को ऐड करना है. दैट मीन्स 20 वाला सैलरी कौन सा है? 800 एंड 2800. तो आपको ऐड करना है 800 एंड 2800. आपको आंसर क्या मिलेगा? इट विल कम 3600. यू कैन चेक. इट विल कम 3600. Next department number is 30. Then again it will count how many records are there with department number 30, that is 2. 2 employees are there and the salary is 1600 and 1250. So it will add these two values. 1600 and 1250 add करने से आपको आंसर क्या मिलेगा? It will come 2850. 2850. Next, third one, next value is 10. 10 department number. How many employees are there? Here also 2. What will be the result? Sum of salary आपको क्या मिलेगा? आपको 10. ये दो रिकॉर्ड को, दो वैल्यूज को ऐड करना है. So the answer will be 6300. 1300 plus 5000, that is 6300. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार हमने सम फंक्शन अप्लाई किया है, काउंट फंक्शन अप्लाई किया है और यहाँ पे ग्रुपिंग क्या किस कॉलम के अकॉर्डिंगली किया है जिसमें आइडेंटिकल वैल्यूज़ है. पिछले वाले क्वेरी में हमने जॉब कॉलम पे अप्लाई किया था क्योंकि वहाँ पर आइडेंटिकल वैल्यूज़ है. In this query we have applied group by clause on the column department number. Department number wise आप देखिए थ्री यूनिक वैल्यूज है 20, 30 एंड 10. तीनों वैल्यूज क्या है? ट्वाइस है, दो बार है. तो इसीलिए काउंट फंक्शन में देखिए इट हैज काउंटेड एंड गिवन द रिजल्ट. देन सम ऑफ सैलरी में क्या हुआ है? एज पर द डिपार्टमेंट नंबर
सम फंक्शन अप्लाई किया है। तो जब भी आप ये अगर आउटपुट क्वेश्चंस में आता है तो आपको ध्यान देना है कि किस ग्रुप फंक्शन को आप अप्लाई कर रहे हैं और वो अकॉर्डिंगली किस ग्रुप बाई के अकॉर्डिंगली है। तो ग्रुप बाई देखकर ही आपको ग्रुप फंक्शंस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस ग्रुप बाई क्लॉज, सी स्टूडेंट्स, ये जो हमने ग्रुप बाई अप्लाई किया था, यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं दिया था। कंडीशन मीन्स जो नॉर्मली हम लोग एसक्यूएल क्वेरी में कंडीशंस कैसे देते हैं, वी यूज वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज वी फॉर्म अ कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी गेट द आउटपुट। आप कंडीशन फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 3। मतलब क्या है, उसी बच्चों का नाम शो करना है जिसका रोल नंबर 3 से ज़्यादा है। तो ये कंडीशन है जिस पे हमने क्या यूज़ किया है, वेयर क्लॉज। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो हमने सेलेक्ट पार्ट लिखा है, वी हैव अप्लाइड ग्रुप फंक्शंस बट वी हैव नॉट गिवन एनी कंडीशन। जो भी हम लोग ग्रुपिंग कर रहे थे वो कंप्लीट टेबल के कंप्लीट रिकॉर्ड्स पे अप्लाई हो रहा था, सारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो ग्रुप कर रहा था। बट वी हैड नॉट फिल्टर्ड द रिकॉर्ड्स। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, वी हैड नॉट गिवन एनी कंडीशन, कोई भी हमने फिल्टरेशन नहीं किया है। तो इफ़ आई वांट टू अप्लाई सर्टेन कंडीशंस, कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन आपको ग्रुपिंग करवाना चाहते हैं आप, दैट मीन्स यू डोंट वांट टू अप्लाई ग्रुप बाय क्लॉज ऑन द कंप्लीट टेबल, यू वांट टू अप्लाई बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। फॉर दैट ग्रुप बाय में आप नॉर्मली वेयर क्लॉज यूज करके यू कैन नॉट राइट एनी कंडीशन। आप ग्रुप बाय में कंडीशन लिखने के लिए आप सोचेंगे जस्ट आई कैन राइट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रुप बाय में आप वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते हैं फॉर गिविंग एनी कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अब आप कंडीशन देना चाहते हैं ग्रुप बाय क्लॉज में, देन आप क्या यूज करेंगे, फॉर दैट देयर इज ए क्लॉज दैट इज कॉल्ड एज हैविंग। If I want to give a condition in the group by clause, then I have to use the keyword having, that is a clause in SQL. That means having clause किस लिए यूज करते हैं, to filter the condition। या हम कह सकते हैं हैविंग क्लॉज यूज करके वी कैन अप्लाई सर्टेन कंडीशन ऑन ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज में हम हैविंग कंडीशन यूज करके वी कैन स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशन। विल सी व्हाट इज हैविंग क्लॉज। इट प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स। ग्रुप्स में यानी कि जो हमने ग्रुप बाय यूज करके जो ग्रुप्स फॉर्म किया है उस पर हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, देन हम हैविंग क्लॉज यूज करेंगे। देन इट इज यूज टू स्पेसिफाई फिल्टरिंग कंडीशन फॉर ग्रुप्स। जो मैंने पहले बताया था, हैविंग क्लॉज यूज करके आप फिल्टरिंग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई एनी एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो। सी द सिंटैक्स, सेलेक्ट फील्ड लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय कॉलम नेम, हैविंग कंडीशन। प्रीवियस जो ग्रुप बाय क्लॉज हमने पढ़ा था उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली ग्रुप बाय कॉलम नेम यहाँ तक आपका सेम है। जस्ट उसके बाद क्या ऐड हुआ है, हैविंग कंडीशन। हैविंग कंडीशन का मतलब क्या आता है, कीवर्ड इज हैविंग और कंडीशन जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो। नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी सॉ इन द ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय में फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू जॉब हमने काउंट फंक्शन अप्लाई किया था। सेम अब हम सेम जॉब फंक्शन में ग्रुप बाय अप्लाई करेंगे, कंडीशन भी सेम होगा, वी हैव टू काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, बट सर्टेन कंडीशन इज देयर। हमें कंडीशन देना है। हम क्या कंडीशन देना चाहते हैं, केवल उन्हीं जॉब्स का रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा जिसका जॉब क्लर्क हो या फिर मैनेजर हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको सारे जॉब्स को ग्रुपिंग नहीं करना है, केवल उन्हीं जॉब्स को ग्रुपिंग करके आपको काउंट करके शो करना है जिसका जॉब या डेसिग्नेशन दैट इज क्लर्क हो या फिर मैनेजर हो। नाउ हाउ विल राइट द क्वेरी, सेलेक्ट जॉब काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम इज एम्प्लॉय, ग्रुप बाय, यहाँ तक आपका सेम होगा प्रीवियस क्वेरी की तरह, ग्रुप बाय जॉब, ये सेम है। अब आपको ऐड करना है हैविंग।
हैविंग इज द कीवर्ड। देन किस कॉलम पे, सिंटैक्स में मैंने बताया था हैविंग कंडीशन, तो कंडीशन आपका क्या है, हैविंग आप अप्लाई कर रहे हैं जिसका जॉब इन एक ऑपरेटर है जो मैंने पहले बताया था, फर्स्ट इट शुड बी क्लर्क और इट शुड बी मैनेजर। सी हियर ग्रुप बाय जॉब यहाँ तक सेम है, तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी। हैविंग इज द कीवर्ड, किस कॉलम पे हैविंग अप्लाई हो रहा है, जॉब। क्यों जॉब पे हमने लिखा है, बिकॉज द कंडीशन वाज दैट जिस एम्प्लॉय का जॉब क्लर्क हो या फिर मैनेजर हो उसी पे ये ग्रुप फंक्शन काउंट अप्लाई होगा। दैट मीन्स जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 4 आपको आउटपुट मिल रहा था, 4 रिकॉर्ड्स वे शोन, बट हियर यू विल गेट ओनली 2 रिकॉर्ड्स, 1 इज फॉर क्लर्क एंड 1 इज फॉर मैनेजर। तो इसीलिए मैंने लिखा है हैविंग जॉब इन एक ऑपरेटर मैंने बताया था। इन ऑपरेटर क्या करता है, विद इन पैरेंथेसिस आप जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज देंगे इट विल सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन द टेबल। तो इस पर्टिकुलर टेबल में इट विल सर्च वेदर एनी रिकॉर्ड इज देयर विद हैविंग जॉब इक्वल्स टू क्लर्क। जॉब इक्वल्स टू क्लर्क कितने रिकॉर्ड्स है, 2 रिकॉर्ड्स आर देयर, सो आउटपुट यू विल गेट एज जॉब काउंट। फर्स्ट रिकॉर्ड इज क्लर्क, फर्स्ट रिकॉर्ड इज क्लर्क, हियर कंडीशन क्लर्क इज देयर, सो कंडीशन मैच हो रहा है इसीलिए आउटपुट में आपको क्लर्क मिलेगा। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, क्लर्क में कितने रिकॉर्ड्स है, काउंट होगा, इट विल शो 2। नेक्स्ट सेकेंड रिकॉर्ड इज सेल्समैन। सेल्समैन यहाँ पे इन ऑपरेटर में चेक होगा व्हाट आर द वैल्यूज, क्लर्क मैनेजर, वेदर क्लर्क और मैनेजर इज इक्वल्स टू सेल्समैन, नो, कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, सो सेल्समैन वाले रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। थर्ड वन मैनेजर, मैनेजर कंडीशन इज देयर मैनेजर, सो इट विल शो द रिकॉर्ड ऑफ मैनेजर। Manager, how many records are there, only 1, so it will count and it will show 1 as the output. Then again clerk है, last one president, president यहाँ पे नहीं है list of values में, so president वाला record भी count करके show नहीं करेगा। So see the difference, जब हमने केवल group by job किया था you were getting 4 records as the output, आपको इसके बाद सेल्समैन भी मिल रहा था, प्रेसिडेंट भी मिल रहा था, बट जैसे ही मैंने हैविंग क्लॉज यूज किया है, हैविंग का मतलब क्या होता है, टू अप्लाई कंडीशन ऑन ग्रुप बाय क्लॉज। जो भी ग्रुप्स हम फॉर्म कर रहे हैं उस पर अगर हम कंडीशन देना चाहते हैं देन वी हैव टू यूज हैविंग क्लॉज, वी कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज। तो हैविंग लिखा है जॉब, द इन इज द ऑपरेटर, देन आई एम राइटिंग द लिस्ट ऑफ वैल्यू दैट इज क्लर्क एंड मैनेजर। इफ आई वांट टू शो द रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो, देन यहाँ पे आपको कॉमा लिखना है, देन यू कैन राइट प्रेसिडेंट। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप जितना देना चाहते हैं यू कैन गिव विद इन पैरेंथेसिस। आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट द सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी सॉ दैट वाज अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया था, हमने काउंट फंक्शन अप्लाई किया था, देन हमने सम फंक्शन अप्लाई किया था। तो सेम क्वेरी करेंगे बट यहाँ पर हम हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे। तो हैविंग का कंडीशन हम क्या देना चाहते हैं, केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा एंड उन्हीं एम्प्लॉयज़ की सैलरी को प्लस करेगा जिसका डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20 है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यानी 10-20 वाला का हम शो नहीं करवाना चाहते हैं, जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20 है केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड को काउंट करना है और सम ऑफ सैलरी शो करना है। सो यहाँ पर हम क्वेरी को चेंज करेंगे, सेलेक्ट पार्ट विल बी सेम, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, देन सम ऑफ सैलरी कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। हैविंग कंडीशन इज दैट ग्रेटर देन 20। सी हियर, यहाँ आपको आउटपुट कैसे मिल रहा था, डिपार्टमेंट नंबर, first what it will check, first department number is 20,
कंडीशन इज दैट हैविंग डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20. ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? इट शुड बी ग्रेटर देन 20 बट शुड नॉट बी इक्वल टू 20. तो पहला जो रिकॉर्ड है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, क्या वो रिकॉर्ड को वो लेगा? द कंडीशन इज नॉट मैच, सो डिपार्टमेंट नंबर 20 वाला रिकॉर्ड को नहीं लेगा. सो काउंट फंक्शन भी अप्लाई नहीं होगा, ना ही सम फंक्शन. सेकेंड रिकॉर्ड having department number greater than 20, that is 30. That means department number 30, how many records are there? Only 2 records are there. Then sum function is 2 records पे apply होगा. So what output you will get? Again it will be 2850. केवल आपको देखना है डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20, केवल 2 रिकॉर्ड है, 30. Salary is 1600, 1250. So output is 2850. Next last one 10. Again the condition is not matched. Condition match नहीं हो रहा है. It is less than 20. So यहाँ पे वो रिकॉर्ड भी शो नहीं होगा. सो प्रीवियस एग्जाम्पल में जब हमने ये क्वेरी लिखा था विदाउट हैविंग हमने अप्लाई नहीं किया था, तब क्या हो रहा था? आपको 3 आउटपुट मिल रहा था, 3 रिकॉर्ड्स वे सीन एज द आउटपुट. लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने कंडीशन अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड में डिफरेंस आ रहा है. रिकॉर्ड में आपको ओनली 1 आउटपुट यू आर गेटिंग बेस्ड ऑन द कंडीशन. सो मुझे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो हैविंग क्लॉज यूज़ करके आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं. जैसे वेयर क्लॉज यूज़ करके आप कंडीशन लिखते हैं, उसी तरह आप हैविंग क्लॉज यूज़ करके भी कंडीशन लिख सकते हैं. तो हैविंग जैसे ही आप लिखेंगे तो ग्रुप बाय अप्लाई होते वक्त इट विल फिल्टर द ग्रुप्स इन द रिजल्ट. जब भी आप रिजल्ट देखेंगे उसमें फिल्टरेशन अप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज, तो आपको लिखना है इन द वेयर क्लॉज it is applicable on individual rows and having clause it is applicable on groups. just आप नोट कर सकते हैं what is the difference between where clause and having clause. where में क्या होता है? it is applicable on individual rows, it is applicable on ग्रुप्स. वेयर क्लॉज में आप इंडिविजुअल रो पे अप्लाई करते हैं और हैविंग क्लॉज में क्या होता है? ग्रुप्स पे अप्लाई होता है. नेक्स्ट, इट कैनॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन. व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन? दैट इज ग्रुप फंक्शंस जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जैसे काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन. तो आप वेयर क्लॉज में ग्रुप फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुप फंक्शंस. ये आप नोट कर लीजिए डिफरेंस. कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज. वेयर क्लॉज में इंडिविजुअल रोज पे अप्लाई होता है, यहाँ पर ग्रुप्स पे अप्लाई हो रहा है. वेयर क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शन काउंट, मैक्स, मीन यूज़ नहीं कर सकते हैं. लेकिन हैविंग, जैसे मैंने यहाँ पे देखा काउंट फंक्शन, सम फंक्शन हमने यूज़ किया था, लेकिन वो फंक्शन आप वेयर क्लॉज में यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन टूडेज क्लास वी हैव सीन ग्रुप बाय क्लॉज एंड हाउ वी कैन अप्लाई कंडीशन ऑन ग्रुप बाय क्लॉज यूजिंग हैविंग क्लॉज. We'll see some more topics and we'll do some CBSE based question, how the question comes in this SQL chapter. Thank you.